Hello, student friends. Now we are going to discuss stereoisomerism, in which last part was remaining, that is optical isomerism. The first part we have seen, that is geometrical isomerism. Now today we are going to discuss optical isomerism. Students, we have seen in organic chemistry that optical isomerism is shown by those compounds which possess chiral carbon atom, right? In organic chemistry we have seen. But important thing which we noted there was the compounds which were having no plane of symmetry, they were exhibiting optical isomerism. Optical isomers are also called as enantiomers. Optical isomers are also called as enantiomers. That is, in enantiomers, the first compound and second compound, they are having the ability to rotate plane polarized light either to the right side or to the left side. Those compounds which rotates plane polarized light towards right are denoted as dextro compound, or we write it as plus. And those compounds which rotates PPL, that is plane polarized light, on left hand side are termed as LEO compound, that is minus. So enantiomers are either dextro and LEO. I am not saying dextro or LEO. There are both the forms possible, dextro form as well as LEO form for one particular compound, that is enantiomer, and plane polarized light. Their behavior towards plane polarized light will be different from one another. So they are called as enantiomers. Now in organic chemistry we have also seen, if you mix equimolar equal quantity of, what I am saying, when we mix equimolar equal quantity of both dextro form and LEO form, they form a compound which is optically inactive. This process is called as racemization, and this mixture is called as racemic mixture. ये हमको enantiomers के बारे में बैकग्राउंड मालूम है. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी कंपाउंड अगर ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं, ये हमको कंफर्म करना है, तो हमारे पास में ऐसी टेक्निक होनी चाहिए कि रेसिमिक मिक्सचर से डेक्स्ट्रो फॉर्म और लियो फॉर्म हमको बाहर निकालते आना चाहिए और शो करते आना चाहिए. So this process of taking out dextro form and LEO form from the racemic mixture, क्या बोल रहा हूँ? This process of taking out dextro form and LEO form from racemic mixture is called as resolution. सो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स है कि नहीं, ये कंफर्म कर सकते हैं हम लोग जब हम कोई भी एनांशियोमर को रिजॉल्व कर लेंगे. ये हमको पहले बात याद रखनी है. समझ में आ गया इतना? अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं. ठीक है, तो अभी 2 मिनट पहले आपको मैंने बताया था कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में सेपरेशन ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लियो फॉर्म्स फ्रॉम रेसिमिक मिक्सचर इज कॉल्ड एज रिजोल्यूशन. सो रिजोल्यूशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. अब हम ऑप्टिकल एक्टिविटी देखते हैं हमारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में. ऑप्टिकल एक्टिविटी और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमको अगर देखना है तो मैंने आपको बताया था कि वी आर हैविंग 2 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. वन इज विथ
coordination number 4 and another is with coordination number 6. coordination number 6. coordination number 4 में मेरे पास में दो ज्योमेट्रीज है. पहली ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल और सेकंड ज्योमेट्री है मेरे पास में स्क्वायर प्लेन. अब इसके ऊपर फोकस करते हैं. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कायदे से देखा जाए तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मस्ट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, बट अनफॉर्चुनेटली we are unable to resolve dextro and leo form for tetrahedral geometry. So in a nutshell, और 100 बात की एक बात, tetrahedral geometry और tetrahedral complexes does not exhibit optical isomerism. दिखाना चाहिए लेकिन दिखाता नहीं है. क्यों नहीं दिखाता है? क्योंकि रिजोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी आर अनेबल टू रिजॉल्व इट. इसका मतलब ये हमको ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाता नहीं है. स्क्वायर पिलर कॉम्प्लेक्स में आपको तो मालूम है ज्योमेट्री इज लाइक दिस, सो इट इज ऑलरेडी हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री. सो स्क्वायर पिलर कॉम्प्लेक्सेस आल्सो डज नॉट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. तो हमारे क्लास में किसी भी स्टूडेंट को अगर मैंने पूछा कि भाई कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाता है क्या, आपका आंसर होना चाहिए नो सर, ऑप्टिकल एक्टिविटी इज नॉट शोन. व्हाई इट इज नॉट शोन? इट इज बिकॉज स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री should show, but since we are unable to resolve, we are not getting optical isomers for the complexes having coordination number 4. Clear? इतना समझ में आ गया? ओके, अब आगे चलते हैं. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर 6. अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में मैं डायरेक्टली टॉपिक पे आता हूं. हमारे पास में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जब रहता है तो ज्योमेट्री बॉस कौन सी रहती है हमारे पास में? वी आर हैविंग ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री. ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अलग अलग टाइप्स हैं. कौन कौन से अलग अलग टाइप्स है आपको मालूम है? M, A4, B2, M, A3, B3, M, A2, B2, C2, M, A, B, C, D, E, F एक्सेट्रा. कायदे से देखा जाए तो इनमें से कुछ लोगों ने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाना चाहिए, लेकिन आप नोट करें यहां पे जितने भी लिगेंड्स मैंने लिखे हैं, दे ऑल दीज लिगेंड्स आर मोनोडेंटेड. व्हेन ऑल द लिगेंड्स आर मोनोडेंटेड इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6, we are unable to resolve the dextro and leo form. So कोई भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जिसमें सभी लिगेंड्स मोनोडेंटेड है वो हमको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाता नहीं है. सो कौन से कंपाउंड्स दिखाते हैं सर फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6? इसका अभी हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं. कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए अगर हमको ऑप्टिकल आइसोमर्स चाहिए, वी मस्ट हैव वन or more symmetrical bidentate ligand. We must have one or more symmetrical bidentate ligand. Symmetrical bidentate ligand का सिंबल बेटा आप लोगों को याद है? It is AA. It is called as this one. So only three types of complexes which has symmetrical bidentate ligand can show optical isomerism with coordination number 6. The first example here is MAA3 type. MAA3 type. इसका एग्जाम्पल आपको मालूम है. सपोज मैं यहाँ पे कोबाल्ट देता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ
थ्राइस 3 प्लस, तो ये सिमेट्रिकल बाइडेंटिटी लिगेंड है. दिस कैन 100% शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बिकॉज वी आर एबल टू रिजॉल्व dextran LEO form for this complex. Another example we can have CO C2O4 thrice 3 minus trioxalato cobaltate 3 tris ethylene diamine cobalt 3 ion. तो ये दोनों बाइडेंटिटी लिगेंड्स हैं और 3 है. वी शुड हैव वन और मोर. तीन है तो ये अपने को दिखाता है. ये पहला टाइप हो गया. दूसरा टाइप कौन सा रहेगा? दूसरा टाइप इज दिस MAA2 A2. ये सेकंड टाइप है. सर एग्जांपल बताओ. एग्जांपल इज वेरी सिंपल. कोबाल्ट अभी En ट्वाइस Cl2. यहां पे हमारे पास में अभी प्लस, क्योंकि ये 2 माइनस है, ये 3 है. सो मेरे पास भी यहाँ पे प्लस चार्ज आने वाला है. इसमें से आपको मालूम है A2 टाइप है तो सीस और ट्रांस रहेंगे इसमें. उसमें से कौन सा फॉर्म दिखाएगा वो अपन एक्सप्लेन करेंगे. और तीसरा जो टाइप है दैट इज MAA2 AB टाइप. दोनों लिगेंड्स अलग अलग हो सकते हैं. तो मैं एग्जांपल देता हूं आपके पास में. वी आर हैविंग कोबाल्ट, we are having En twice, we are having NH3 and we are having here Cl. Naturally the charge coming here will be +2. So देखो AA twice A और ये B दोनों लिगेंड अलग अलग टाइप के हैं. तो ये तीन ही हमारे पास में हेड्स है जो हमको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं. MA3 टाइप, MA2A2 टाइप, MA2AB टाइप. क्यों शो कर सकते हैं? बिकॉज वी आर एबल टू रिजॉल्व dextran LEO forms from this complex. Now we'll take one by one. ठीक? Now let us start better with the first type, MAA3 type. MAA3 type में we are having two examples, tris ethylene diamine cobalt 3 ion and trioxalato cobaltate 3 ion. अब मैं पहला एग्जांपल लेता हूं. पहले एग्जांपल को अगर लेता हूं तो हमारे पास में octahedral geometry like is this. So we are having octahedral geometry. At the center we are having cobalt 1 bond, 2 bond, 3 bond, 4 bond, 5 bond, 6 bond, and first En will come here like this. Another En will come like this, and third En will come like this. Suppose you take the mirror image. Suppose we take the mirror image. We can see that in the mirror image we are getting such kind of image. This is mirror image. 1, 2, 3, 4, cobalt 5, 6. So this En will be coming on this side. This En will be coming on this side, and this En will be coming on this side. So both these images are now non-superimposable mirror image. Hence this suppose is dextroform, this will be certainly which form? LEO form. So this is the first example. MA3 type definitely will show us optical isomerism. Okay, now students, सेकंड टाइप MAA2 A2 टाइप. मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पर CO En2 Cl2 प्लस डाइक्लोरो बिस इथिलीन डायमीन कोबाल्ट 3 आयन. अब ये कंपाउंड को आप दो तरीके से ओपन करके लिख सकते हैं. पहला कंपाउंड मैंने ऐसा लिखा है. प्लीज सी इट केयरफुली. You can see that both these chlorines can be cis to one another, or these two chlorine can be trans to one another. मतलब हमको जब इस टाइप का कंपाउंड आता है तो हमको पहले देखना पड़ेगा कि उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है कि नहीं. अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो है, इसके लिए सिस है और ट्रांस है. अब सिस की मैं मिरर इमेज लेता हूँ.
सिस की जब मैं मिरर इमेज लेता हूं तो आपको दिख पड़ता है कि Cl is coming here, Cl is appearing here. This ethylene diamine will be coming on this side and this ethylene diamine will be coming on this side. Now suppose you take this mirror image and put this on the original one, you will find it is forming non-superimposable mirror image. If it is forming non-superimposable mirror image, it means that this compound, if it is dextro, this will be certainly LiO. So cis form can show us optical isomerism. What about transform? ट्रांसफॉर्म के लिए आपको इसकी मिरर इमेज बिल्कुल ऐसी ही मिलने वाली है जैसा हमारा ओरिजिनल कंपाउंड है. Cl will be getting mirrored here, Cl will be mirrored here, ethylene diamine will be coming on this side for this ethylene diamine and for this ethylene diamine it will be coming here. अब इसको अगर हम इसके ऊपर रखेंगे सभी चीजें एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो रही है. सो ट्रांसफॉर्म विल नेवर शो ऑप्टिकल आइसोमर. So in this particular case, one must know that only cis can exhibit, trans does not exhibit. समझ में आ गया? ये सेकंड टाइप है. थर्ड टाइप इसी का रेप्लिका है. थर्ड टाइप हमारे पास में है. थर्ड टाइप आई एम यूजिंग द डिफरेंट पेन. थर्ड टाइप इज MAA2 AB. AA2 AB मतलब मैं यहां पे लिखता हूं NH3 और मैं यहां पे लिखता हूं Cl. दोनों लिगेंड्स अलग अलग हैं. अब ये Cl है और मेरे लिए ये NH3 है. ये हो गया सिस. और Cl और NH3 मेरे लिए ट्रांस भी हो सकता है. अब ट्रांस की मिरर इमेज देखेंगे आप तो आपको मिलेगा यहां पर NH3, यहां 2+. यहां पर आपको मिलेगा Cl NH3 Cl NH3. ट्रांस की मिरर इमेज बिल्कुल वैसी रहने वाली है जैसा ओरिजिनल है. सो ट्रांस विल नॉट शो. व्हाट अबाउट सिस? सिस इज शोइंग बिकॉज इट इज फॉर्मिंग नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज. इतना हमको समझ में आ गया. अब हम इसका रिकैप लेते हैं. इसका. तो रिकैप में हमको देखना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4. कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 does not exhibit optical isomerism. कोई भी ज्योमेट्री रहे, टेट्राहेड्रल रहे या फिर स्क्वायर प्लेनर रहे, क्यों नहीं दिखाता है ये? क्यों नहीं दिखाता है? We are unable to resolve dextro and LiO form. Similarly, coordination number 6 में condition important is that it must have at least one bidentate ligand. It must have at least one bidentate ligand which must be symmetrical. So मेरे पास में सिर्फ 3 एग्जांपल्स है जैसे मैंने आपको बताया था. पहला एग्जांपल मेरे पास में कौन सा है बेटा? MAA3 टाइप. दूसरा कौन सा है? MAA2 A2 टाइप. इसमें से कौन दिखा सकता है? सिर्फ सिस. और तीसरा लास्ट एग्जांपल इज MAA2 BC टाइप और AB टाइप. आई राइट प्रॉपर्ली AB टाइप. इसमें भी कौन दिखा सकता है? सिस. ट्रांस दिखाएगा क्या? नहीं. ट्रांस दिखाएगा क्या? नहीं. इतना आपको बार बार वीडियो देख के समझना पड़ेगा बेटा. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज वेरी सिंपल, एट द सेम टाइम इट इज वेरी कंफ्यूजिंग. इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस MCQs ऑन एंटायर आइसोमेरिज्म. थैंक यू.